तो उसको बुलाइए इनको करीम तो उसको शूज का लाई करता रहेगा पूरा वो अंदर है सर आइए लखिंदर जी कृष्ण कुमार जी प्रधान
प्रशिक्षणार्थी का स्वागत है। इन हाउस टेबल के दरमियान आज 6ठा दिन अर्थात 25 घंटे से ऊपर के जीवन में आज के रिसोर्स पर्सन अपने आचार्य श्री लखन कुमार शोनी हैं। इनके द्वारा आज का जो टॉपिक्स है वह लोक शिक्षा नीति NEP 2020 पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसका लाभ लेकर के हम अगले सत्र में इसका उपयोग करेंगे। उनके दिशा निर्देश में आज प्रशिक्षण हम देंगे। श्रीमान लखन
Today's topic is the most important topic of the nation because we know that this is the third education policy of our country. The first education policy came into existence in 1968 when Indira Gandhi was the Prime Minister. And the government was not very serious about the education policy. You know that the education policy of Macaulay was ruling our country. Till now, the third education policy is coming into existence in 2020. But part-wise, it is going to be appreciated all over the world because it is not only for Indians, but there are so many features in our education policy. We can understand that most of the people are thinking about this is not the copy-paste of the education policy of the other countries. It is Indian because in our country 3 crore people participated to just make the education policy. And a very well person of our country, K. Kasturi Rangan, who was the chief of our country in just resources which are connected to our protection and security of K. On 29th July 2020. And President Prime Minister Mr. Narendra Modi is very serious about the education policy. So we can say that this is the Indian education policy. We know that we are the teachers of Vidya Bharati. And our Lakshya, that is the motto of our Vidya Bharati, इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्व एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक ये सारी चीजें all these features are present in our education policy. So we have just completed our training of NEP on the various levels of our school, but this is the division. Because without the knowledge of NEP, we can't do anything. Because we are the teachers and we have great responsibility on our shoulders. Because this education policy focuses on the students, not teachers. Teachers are just catalysts in the form of the role. And just the catalyst, we have to play the role. And in the center of the education policy is the child. So the main purpose of the education policy is child-centered education. The format has been changed. Before that, in 1986, the second education policy came into existence, and at that time, Mr. Rajiv Gandhi was the Prime Minister. There were so many changes in 1992, and this education policy just focuses on the holistic and all-round performance of the students. So we are the teachers, and there are so many focuses on the just capacity building programs for the teachers because we are the learners. We are not the only teachers because we are the learners. If we can understand, we can learn more and more, then we can teach the students. Because there are so many problems related to the students. And the training makes us aware about how to teach, where to teach, when to teach. So we will discuss all these features in the coming time today. So I will just make sure that your
participation and your collaboration with me also mattered in the coming time. So I can just make you sure. This is the book राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. The person who can raise the hand, who has just read all the pages of this education policy. जो इस एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू शिक्षा नीति के जगह पर अब प्रधानमंत्री जी ने उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा, तो कोई है जो पूरी तरह से इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि कम से कम इसको अच्छे से पढ़ लेना है, सब कुछ उपलब्ध है। The motto of the education policy is to just make our country global superpower. Global superpower in the field of education. कहा जाता है कि education is power. शिक्षा एक शक्ति है, शिक्षा एक देवी है, शिक्षा दुर्गा है, शिक्षा सरस्वती है, शिक्षा लक्ष्मी है। शिक्षा से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, उसको थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि विजन एंड थ्री प्रिंसिपल्स। एजुकेशन पॉलिसी इज डिपेंडेड ऑन 5I पर यह लिखा है। उसको बारी-बारी से हम लोग देखेंगे। पहला है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम से मतलब है कि भारतीय शिक्षा पद्धति। हम सभी जानते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था रही है गुरुकुल की व्यवस्था है, और उस गुरुकुल की व्यवस्था में जितने हमारे स्टूडेंट्स अपने आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण करते थे, उनका जो लर्निंग का जो परिणाम था, जिसको फीडबैक बोलते हैं, इतना अच्छा है। हम कहाँ रहते हैं? चंपारण। ये चंपारण में एक बहुत ही प्रसिद्ध है वाल्मीकि नगर, जहां पर लौकुश की शिक्षा व्यवस्था हुई थी। और जब हम लोगों ने रामायण सीरियल देखा है, तो उस रामायण सीरियल में कहीं भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किसी ने देखा? महर्षि वाल्मीकि श्लोक को दोहराते गए और लोग उसको स्मरण करते गए। तो उस समय जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी, भारतीय शिक्षा दर्शन, तो आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, भारतीय शिक्षा दर्शन, जो हमारी जो वेदांत है, उपनिषद है, पुराण है, उन सारी चीजों से अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए और पुराना से नया करने वाला, from old to new, यानी कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि हम नया बनने जा रहे हैं, हम पुराने अपने जो संस्कार पद्धति है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको हम भूल जाए। बहुत सारे लोग आधुनिकता में क्या करते हैं, वह अपनी व्यवस्था को भूलते जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे कुछ लोग जब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के ड्रेस पहनते हैं, देखा होगा आपने। और अमेरिका के जो लोग आते हैं वो भारतीय परिधान पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट इमिटेशन, फैशन। तो फैशन से नहीं होना। तो हमारे जो शिक्षाविदों ने कहा कि ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी व्यवस्था भी अच्छी रहे और गुणवत्ता भी, इसको कहते हैं ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा। तो मूल्य आधारित शिक्षा विद्या भारती में भी हम लोग देखते हैं। ये जो मूल्य आधारित शिक्षा है, इसकी कमी के कारण आज बच्चों में ह्रास हो रहा है, डिटोरेशन हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मूल्य आधारित शिक्षा केवल बच्चों को दिया जाए। हम सब एक राष्ट्र निर्माता है, और जब राष्ट्र निर्माता है तो मूल्य आधारित जो शिक्षा है
उसको पहले हमको अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमिटेशन करते हैं। हम सभी बैठे हैं तो क्लासरूम में जब जाते हैं तो कुछ सोच के जाते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे पहले से ही जानते हैं कि क्या बोलने वाले, कुछ बच्चे तो टीचर का उपनाम भी रखे भी है, भले मुंह को नहीं बोलते हैं। तो हमारा जब वो नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ते हैं। तो पहले हम अपने आप को ठीक करें, फिर उसके बाद बच्चों को, तो चूंकि बच्चे हैं तो उनका जो लेवल होता है वह अपना उनका होता है। तो जो पहला आयु है वो इंडियन भारतीय कलर, उसके आधार पर अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे कि हमारी गुरुकुल की जो परंपरा रही उसमें किस प्रकार से हमारे प्राचीन स्टूडेंट्स थे वह अध्ययन करते थे। This boy became renowned by name of Charles.
who was a great scholar of Sanskrit grammar. He composed great Sanskrit grammar books like Madhya Siddhanta Kauri, Laghu Siddhanta Kauri, and Sar Siddhanta Kauri. Even after hundreds of years, these grammar books have been remained untouched. If we see in our lives, we will find that it is very important to work hard to be successful in life. Practice is very important, whether it is in sports, or in studies, or anything else. One cannot succeed without practice. Along with practice, determination is also very important. If you will be sitting only alone without practice, then at the end, you will do nothing but regret. If we look into the story, we will find that earlier that child was very weak in studies and he did not understand Hindu. But with his determination and tireless practice, he became a great scholar. This happened only because of his practice with perseverance. Through this story, I want to send a message to all the students who want to be successful in their lives. I want to tell them that you must bring these two qualities in your life: strong determination and tireless practice. History is only the stories of people who have adopted these two qualities in their lives. All the great scholars, scientists, or other great people who made their name in history were not better than you. They did not have anything that you don't have, but they all became great only by their perseverance and tireless practice. Therefore, if you also want to reach the height of greatness in your life, then start working hard from today with determination. Because by patience, hard work, and perseverance practice, you can get anything in your life. हम सबने देखा सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही साधारण सा बालक उस किताब को लिखा जो आंसर एंड मैथ्स है, पाणिनि, जिनका नाम हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को भी कुछ, जैसे हमने कहा कि पाय थाई आई पर टिका हुआ है यानी, तो इसमें पहला आई है जो इंडियन, उसके अंतर्गत इंडियन से रिलेटेड कुछ बच्चों को बताना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं। तो जो मोटिवेशन हमारी है हमारे माध्यम से होनी चाहिए, और कब कौन सी बात बच्चों को लग जाए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि निगेटिव बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा। उन्होंने कहा था गुरुजी ने कि तुम्हारे भाग्य में एजुकेशन नहीं लिखा हुआ है, देयर इज नो एजुकेशन इन योर डेस्टिनी, लाइन था। लेकिन जैसे रस्सी घिस गई, कोमल रस्सी घिस गई उस पत्थर पर, रस्सी भी घिसी लेकिन उस पत्थर को भी घिसा दिया, तो उसको लगा कि जब मुलायम रस्सी ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो इंडियन है आई में पहला, वो क्या है कि भारतीय जो दर्शन है, उस दर्शन में जो हमारे वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी में भी उसमें मूल्य आधारित शिक्षा में शामिल किया है। फिर हम लोगों ने बहुत प्रसिद्ध कहानी की किताबों को भी हमें पढ़ाए हैं, जातक कथा, हितोपदेश, पंचतंत्र, ये भी इंडियन में आता है और बच्चे स्टोरी के माध्यम से भी बहुत सीखते हैं। क्योंकि जो फॉर्मेट था 10+2 अब समाप्त होकर अब फॉर्मेट कौन सा आ गया, 5+3+3+4। एक बार ध्यान में रखेंगे, 10+2 format has been replaced and the new format in education policy has into existence 5+3+3+4. First 5 is foundational course, foundation। कौन सी का फाउंडेशन है? तो उसमें 0 से लेकर क्लास 2 तक बच्चे आएंगे। फाउंडेशनल पहले था कि बच्चे जब 5 साल के होते थे तो पढ़ाई करते,
अब इसमें क्लास 0 होगा, लेकिन 3 साल की उम्र से शुरू होगा। और इस 3 साल की उम्र से बच्चे सीखेंगे तो इसमें प्री प्राइमरी कराएंगे। जैसे अपने विद्या भारती में भी आया है कि अरुण, उदय, प्रभा, तब प्रथम, तो प्रथम से पहले 3 कक्षाएं, जैसे सरकारी स्कूलों में आने वाले। अब बच्चे खेलेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे, और उसमें जो पढ़ाने वाले भी है ना, उनको भी बहुत मौज मस्ती में रहना। अब शोभा दीदी शिशु वाटिका के प्रमुख रही, अब इनको भी बच्चे बनना पड़ेगा, बच्चे बनती भी है। ऐसा नहीं है कि देखिए कैटेगरी होता है। हमने कहा कि टीचर्स को क्लास में जाना है तो पहला उसको ध्यान में रखना है हाउ टू टीच। अब पीआरटी वाले हैं, उनको 12 में भेजेंगे तो बच्चे के साथ न्याय होगा क्या? पीजीटी वाले को अगर हम भेज देते हैं शिशु वाटिका में तो बच्चे के साथ न्याय होगा क्या? वो पीजीटी है, उनका लेवल है उतना, तो किस कक्षा में जा रहे हैं, उस कक्षा के लेवल के अनुसार अपने आप को ढालना। दिस इज द मोटो, दिस इज द मेन थिंग ऑफ इट। हम जिस लेवल के क्लास में हैं, बच्चों के क्लास में, क्योंकि टीचर का लेवल हाई है और बच्चों का लेवल उसके बराबर नहीं हो सकता, तो उसके लेवल के अनुसार अपने आप को सामंजस्य करना, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारी बातों को समझ सकें। अगर इसके लेवल में जाएंगे तो भी इंजॉय करेंगे और हमारी बातों को बहुत गौर से सुनेंगे। 2 तरह से टीचर होते हैं, एक चांस से टीचर बनते हैं और एक च्वाइस से बनते हैं। तो एनईपी भी कहता है कि जो चांस से बनते हैं उनका जमाना गया। हम लोग भी कहते हैं, प्रधानाचार्य भी बोलते हैं कि रहना है तो वंदे मातरम कहना। वो एनईपी भी बोलता है कि अगर चांस से आ गए तो च्वाइस को बढ़ाइए, नहीं तो रास्ता दिखाइए, रास्ता दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम जा रहे हैं तो किस कक्षा में जा रहे हैं और बच्चों का लेवल को ध्यान में रखना है और उनके अनुसार काम को करना है, क्योंकि टीचर्स को अपडेट होना पड़ेगा। तब इंडिया जो है ना वो सुपर पावर बनेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जब सुपर पावर बनेगा शिक्षा के माध्यम से तो देश मजबूत होगा, क्योंकि जो पेंडेमिक आया, उस पेंडेमिक के बाद भी जो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बहुत अच्छा। आने वाले समय में जैसा एक्सपेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं कि हम लोग विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ईश्वर करे कि हम बहुत जल्द बन जाए, लेकिन केवल अर्थव्यवस्था में बढ़ने से नहीं होगा, शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार हम लोग को अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। जैसे मोबाइल है सबके पास तो मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट मांगता है, अगर अपडेशन नहीं होता है तो क्या होता है, स्लो काम करता है। तो कल्पना करिए कि हम लोग वो मोबाइल है जो अपडेट अगर नहीं करेंगे तो क्लास में जाएंगे जब शुरू होंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उस स्थिति में हमारा क्या करेंगे, क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे ना, बोलेंगे कि ये तो पढ़ के भी आएंगे। एक इनको जो है हमने गूगल को देखा, देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि वो सेल्फ ड्राइविंग की तरफ ले जा रही है। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब कि बच्चे अपने आप को खुद से अपने आप को ढाल रहे हैं, कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्ला है, गूगल है, वो ऐसी ऐसी चीजें बना रही है कि जहां पर आदमी की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम हो रहा है। और जब काम हो रहा है तो काम बहुत अच्छे से हो रहा है। कल हमने देखा कि स्मार्ट क्लास में बहुत सारी जो
है ना फीचर्स भी थे। कुछ भी फीचर्स हो जाए, कितने सारे एआई का प्रयोग हो जाए, लेकिन टीचर्स का रोल जो होगा वो टीचर्स का रोल तो कोई जो है ना डाउट नहीं कर सकता है, उसको समझाने के लिए चाहिए। तो कहने का मतलब जब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में हम लोग हैं, राष्ट्र निर्माता है, फ्यूचर मेकर है स्टूडेंट्स का, यदि कहा गया है कि अगर क्लास में जा रहे हैं, बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति कुछ डाउट्स है, आह में है, तो निकलते समय आहा में बदल जाए आहा, तो स्थिति अच्छी है हमारी। बस ऐसा नहीं करें कि बच्चे हमारा फीडबैक नहीं देते, बहुत अच्छे से देते हैं। एनईपी में भी है कि टीचर्स का भी असेसमेंट होना है। तो टीचर्स का असेसमेंट कैसे होगा? एक तो रिजल्ट भी होता है, इसमें स्टूडेंट भी हमारा असेसमेंट करेगा। एक बार मीटिंग में भी चर्चा आई कि बच्चों से फीडबैक लिया जाए कि कौन सा टीचर्स क्लास में कैसे पढ़ा। इसमें कभी कभी बच्चे थोड़ा ज्यादा उत्साह में भी कभी कभी फीडबैक अच्छा नहीं दे पाते, या कभी कभी होता है कि बायस भी हो जाते हैं, गलती किया कभी उसको डांट दिए, वो मन में रखेगा कि हमको डांटे हैं ना, चलिए इनका फीडबैक खराब कर लेते हैं। ये भी होता है कभी कभी। तो इन सारी बातों तो अपवाद है, लेकिन इस पर नहीं ध्यान देना है कि वो जो पहला पर हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडियन, तो उसमें भारतीयकरण हमारी शिक्षा का होना है, तो इनके माध्यम से तो जो चर्चा किए उसमें पहला आंगनबाड़ी वाला जो चर्चा चला रहे थे, तो उसमें बच्चों को खेल खेल, अब उच्च कक्षा में भी अगर बात करेंगे कि क्लास जब जैसे मानिए कि हम लोग चर्चा किए थे फाउंडेशन, उसके बाद प्री-प्राइमरी होता है, उसके बाद मिडिल होता है, उसके बाद सेकेंडरी होता है, जो 4 5 3 3 4। तो इसमें 2 क्लास तक, फिर उसके बाद प्री-प्राइमरी आपका हो गया आपका क्लास 3 4 और 5, फिर उसके बाद मिडिल हो गया 6 7 8, उसके बाद सेकेंडरी में 9 to 12। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका अलग अलग एज ग्रुप है। पहले 14 साल तक शिक्षा फ्री थी, अब 18 साल तक चली जाएगी, क्योंकि RTE के अंतर्गत, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अब ड्यूरेशन उसका बढ़ेगा। तो इसमें जो हमारा जो मिडिल वाला है 6 7 और 8, इसमें भी 10 दिन ऐसे होंगे जो बच्चे बैकलेस आएंगे। इस एनईपी के तो बैकलेस का मतलब बिना किताब। कुछ लोगों के मन में आता है कि एनईपी में बुक्स रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भी हाइब्रिड लर्निंग मींस कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का एजुकेशन होगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी ऑफलाइन टीचर्स देंगे, आवश्यकता पड़ेगी टेक्नोलॉजी का हम लोग सहारा। तो इसमें जो 10 दिन जो बैकलेस होगा, उस 10 दिन बैकलेस में क्या होगा, उसमें वोकेशनल कोर्सेज आएंगे। और बच्चे, सरकार का भी इस एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ी जो नीति है उसको ये साफ करने की है कि बच्चे किसी भी क्षेत्र में अगर स्किल्ड हैं तो लास्ट अपना 12 करते करते बहुत अच्छा स्किल हो जाएगा उनके अंदर, ताकि हो सकता है कि उसको अपने लिवलीहुड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जैसे जो 10 दिन होगा कि कुछ बच्चे डांस में ज्यादा रुचि लेते हैं, तो इसमें लोकल टू वोकल, इसमें लोकल टू वोकल पर ज्यादा फोकस है। अब लोकल टू वोकल क्या है, कोई क्लियर करेंगे? लोकल टू वोकल मतलब कि जहां पर जैसे अपना स्कूल है सरस्वती विद्यालय, बरबसना विद्यालय, तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, व्यक्ति होंगे
बहुत किसी न किसी क्षेत्र में बहुत फेमस होंगे, उनकी प्रसिद्धि होगी। वो चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो या म्यूजिक के क्षेत्र में हो या जो है ना लिटरेचर के क्षेत्र में हो या गेम के क्षेत्र में हो, तो उनको अपने स्कूल में बुलाना और उनके माध्यम से जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको सिखाना। जिले से लेना, फिर उसके राज्य से लेना, या अपने जो आम जो लोग हैं ना, अपनी चीजों को लोकल को और बृहद तौर पर, जिसको हम लोग दूसरा आगे देखेंगे, इंटरनेशनलाइजेशन। अब दूसरा आई पर आते हैं, इसी में चर्चा करते करते इंटरनेशनलाइजेशन। पहला क्या हो गया? इंडियन। दूसरा क्या हो गया? इंटरनेशनलाइजेशन। एनईपी का मुख्य बिंदु है इंटरनेशनलाइजेशन, दूसरा आई। अब इंटरनेशनलाइजेशन क्या है? एक तो भारतीयकरण देखा। अब देखिए इसमें अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको भारतीयकरण को भी बनाए रखना, और जो बहुत सारी टेक्नोलॉजियां हैं, जैसे देखें ना, इसमें बैठे कुछ ऐसे भी अपने टीचर्स जिनके बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते विदेशी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं या विदेश में भी काम कर रहे हैं या जाने की तैयारी में भी। तो कैसे कि हमारा जो लोकल तक जाए और हमारी जो कैपेसिटी है इतनी अच्छी हो जाए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को सेटअप कर सके, तब तो सुपर पावर बनेंगे। अब ऐसा नहीं कि हम कंपटीशन में नहीं आए, लेवल हमारा बहुत लो होगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिक पाएंगे क्या? नहीं टिक पाएंगे। तो जो एनईपी कहता है कि अपने अंदर इतनी क्षमता कैपेसिटी बिल्ड करो, इतनी अजीब कैपेबिलिटी बना लो, जिसको एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं, कि ताकि कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाए। यही कारण है कि इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में इन जगहों पर जाकर बहुत अच्छे जो है ना सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। क्या जरूरी है? सहमत है? कुछ अपना अनुभव इसमें बताएंगे? हमारे जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, गर्व से तो हम भारतीय हैं, वहां जाके कोई किसी प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो उस स्थिति में हमारे जो बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना हमारी व्यवस्था का ही उसमें स्थान है। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो रही है कि हम उस लेवल पर अपने आप को बना पा रहे हैं। हाँ, इसमें जैसे हमने देखा कि 5वीं क्लास तक अपनी भारतीय भाषा में बच्चे पढ़ेंगे, इस एनईपी कहता है। क्योंकि देखिए चाइना वाले हैं वो अंग्रेजी कम बोलते हैं, उनका जो लैंग्वेज है चाइनीज, वे लोग अगर अंग्रेजी में बहुत अधिक निपुण हो जाते तो पूरा विश्व मार्केट पर छा जाते। ऐसे भी बहुत छाए हुए हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा चाइनीज भाषा होती है, तो अगर अंग्रेजी बोलने लगते तो पूरे जगह छा जाते। लेकिन वो लोग अपने भाषा से भूख लगा होते हैं। जैसे निज भाषा पर गौरव होना चाहिए कि नहीं? चाहे कोई भी हो, कितने बड़े विद्वान हो जाए, तेल में पानी का अंश होगा ना, वही कारण है कि वो हमने सीधे चैलेंज किया, इस दरबार में जितने भी दरबारी हैं, अगर किसी के अंदर क्षमता है तो बता दे कि मेरी मातृभाषा क्या है। क्योंकि कई भाषाओं को बहुत जो है ना धरने से धरा प्रवाह बोलने लगे, कोई नहीं बता पाया। कृष्णदेव राय ने तेलानी ग्राम की तरफ देखा, कितना ग्राम जी आप तो कुछ बताइए। तो बोले कि ठीक है महाराज, हम कल बताएंगे कि इनकी मातृभाषा क्या है। और उनको राज्य के अतिथि कक्ष में
उनको रहने की व्यवस्था दी गई। जब वो सो गए भोजन करके, तो तेनालीराम चूंकि मंत्री थे तो वहां पहुंच गए, द्वारपाल ने नहीं रोका, गए। जब वो सो रहे थे द्वार, तो उन्होंने क्या किया कि उनके नाक में रुई का बाती बनाकर उसमें नाक में गुदगुदी लगाया। जब गुदगुदी लगाया तो उनको गुदगुदी लगी, तो नींद में जो है ना वो अपनी भाषा बोले 2-3 बार, तो सेम भाषा आ गई। उसके बाद तेनालीराम चले आए वहां से, दरबार लगी। उस दरबार में कृष्णदेव राय ने पूछा, चलिए तेनालीराम जी आप बताइए इनकी मातृभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनकी मातृभाषा तमिल है। वो विद्वान बहुत आश्चर्यचकित हुए, कैसे आप बता दिए? वास्तविक रूप से मेरी मातृभाषा तमिल है। बोले कि कैसे? कि हम रात में आपके पास गए थे, आपके नाक में गुदगुदी लगाए थे। जब गुदगुदी लगाते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है कष्ट में अपनी मातृभाषा में बोलता है, तो आप तमिल भाषा का इस्तेमाल किए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने घर में या अपने आस पड़ोस में हिंदी में बात करता है, तो उस भाषा का उस पर गौरव होना चाहिए। तो यही कारण है कि 5वीं कक्षा तक एलपी में अपने लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया है। हरियाणा वाले हरियाणवी तक, हरियाणवी में पढ़ेंगे 5वीं तक, बिहार वाले भोजपुरी, फिर उसके बाद उड़ीसा में उड़िया वाले उड़िया लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लोकल लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि बस अंग्रेजी को बिल्कुल खत्म करो। जब खत्म कर देंगे फिर इंटरनेशनलाइजेशन में कैसे अपने आप को टिक पाएंगे? 5वीं कक्षा के बाद जो बच्चे पढ़ना है, अब इसमें देखें ना कि एलपी का विरोध वैसे लोगों ने किया जो इंग्लिश मीडियम के नाम पर बहुत सारी स्कूलें चलती हैं। उन्होंने कहा कि इंग्लिश को बिल्कुल खत्म करने के बाद है, ऐसा नहीं है। खत्म करने के बाद पढ़ना है, पढ़ेंगे, एक भाषा के तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजीकरण नहीं होगा। क्योंकि हम अपने देश में हैं तो पहले अपने देश की भाषा को समृद्ध करेंगे तो देश भी समृद्ध होगा। जिस देश की भाषा समृद्ध नहीं होती है उस देश कभी समृद्ध नहीं बनता है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे अच्छे से टिक पाए, तो उसमें कैसे होगा कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे वो रूबरू हो, उनको भी वोकेशनल कोर्स के माध्यम से, जैसे कोडिंग सिखाना 6ठी क्लास से, कोडिंग के साथ साथ अन्य भी चीजों की जानकारी देना। जैसे अपने आप में शुरू हो रहा है क्लास 8 के बच्चे, अब हाइब्रिड लर्निंग के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, उसके माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग लेंगे। 40 बच्चे उसके लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 2022-23 से एलईपी फॉर्म में आ गया है, अंशतः लागू हो रहा है। तो इसमें क्लास 6 से उनका वोकेशनल कोर्स शुरू होगा, तो 10 दिन जो बैचेस होगा वो अपने रुचि के अनुसार पढ़ाई करेंगे। कुछ कारपेंटरी, कुछ जो है ना पॉटर का काम, बड़े मिट्टी का बर्तन बनाना, पापड़ बनाना, जिसको जो रुचि है, सप्ताह में बुलाना, गेस्ट टीचर के तौर पर दिन भर उनसे काम लेना, उन बच्चे को सिखाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें स्कूल के बजट में भी प्रावधान करने की व्यवस्था बनाई गई। तो बच्चे अब जब आएंगे सेकेंडरी लेवल पर, तो सेकेंडरी लेवल पर जो 9 to 12 है उसमें स्ट्रीम समाप्त कर दिया गया। स्ट्रीम का मतलब कि पहले था ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर लेना है तो इसका था, वो आर्ट्स लेकर नहीं पढ़ सकता, लेकिन अब स्ट्रीम फ्री है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या वो चाहे तो हिस्ट्री भी लेके पढ़ सकता है। तो इसमें बच्चे अब अपने रुचि के अनुसार पढ़ेंगे और वो विषय पर उनकी पकड़ बढ़ेगी। तो जब स्ट्रीम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस विषय में अगर रुचि होगी तो उसमें उनका जो आइडेंटिटी की भी व्यवस्था बीएड वाले की बात है, तो 2029 से बीएड का जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन है।
इंटर करने के बाद अगर बीएड करेंगे तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना, सीधे इंटर करेंगे और 4 साल का बीएड। तो 4 साल का बीएड करेंगे तो बीएड में भी आपको कोडिंग सिखाया जाएगा, उसमें तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में बोले ना कि चांस से बने हैं, कोई गुंजाइश नहीं है, आपको च्वाइस लाना पड़ेगा। च्वाइस से टीचर बने हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि आने वाले समय में ज्यादातर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बजट होने वाली है। तो जो इंटर करके जाएंगे तो 4 साल का इंटीग्रेटेड होगा, उनका 30 से शुरू हो जाएगा, पूरी तरह से लागू हो जाएगा। लेकिन जो लोग मान लिया कि अगर बीए कर लिए, ऑनर्स करने के बाद करते हैं तो उनको 2 साल का करना पड़ेगा, और अगर मान लें कि अगर आप मास्टर्स कर लिए तो उसके बाद 1 साल का आपको करना है। अब इसमें भी बीएड में भी कुछ व्यवस्था बनी है, सॉरी बैचलर ऑफ आर्ट्स में या बैचलर ऑफ साइंस में होता है ना कि ग्रेजुएशन के लिए, उसमें ग्रेजुएशन में भी कुछ परिवर्तन किया है, 3 ईयर डिग्री तो सकता है। अब उसमें जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में अगर कोई 1 साल बीए की पढ़ाई है, देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जब उसको समझेंगे तो पता चलेगा कि 1 साल की पढ़ाई की और किसी कारण से पारिवारिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारण हो सकता है, तो आप पढ़ाई छोड़ दिए, तो 1 साल की परीक्षा दिए छोड़ दिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी बीए सर्टिफिकेट 1 साल आप वहीं रहिए। अब फिर मन किया कि 1-2 साल के बाद पढ़ाई कर लेते, तो 1-2 साल के बाद फिर अगर एडमिशन करवा लिए तो आपका दूसरा साल में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अभी ये व्यवस्था नहीं, कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन वो एनपी लागू होने पर फिर मानिए कि 2 साल कर लिए, जब 2 साल कर लिए और तब फिर मौका फंस गया तो फिर छोड़ दिए, तो दूसरा पुराना कर लिए हैं तो आपको जो है ना उसमें आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाए, और आप 2 साल के लिए फिर लीजिए, फिर तीसरा साल में एडमिशन करवा लो। जो करेंगे लास्ट में जो ग्रेजुएशन कर लेंगे उनको डिग्री का या डिग्री का, तो ये जो मल्टीपल एग्जिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मल्टीपल एग्जिस्टेंस माने आप बीच में आना, आप बीच में छोड़ के चले, तो इसकी जो व्यवस्था है उसको मल्टीपल एग्जिस्टेंस में लाया गया है। ये सारी बातें वो पेडागोजी का अंतर्गत है। पेडागोजी क्या है कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड जो चीजें हैं जो लर्निंग आउटकम के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक है, तो उसके लिए जो है ना बहुत ही ज्यादा है, लाभदायक है। आप सबसे नीचे लाइन देख सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक का भी इस्तेमाल, जैसे आपके सामने स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद लर्नर सेंटर, मतलब वो हमारे जो लर्नर है, लर्नर पर स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट केंद्रित, देखते ना कि पहले की बात आई थी कि कोई भी टीचर क्लास में जाते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय, मजा बोलते कि नहीं, निकलते समय बोले आज सर जी बहुत क्लास में मजा आया, जरा बहुत दिन के बाद मिला, कभी लग रहा था कि कितना दिन से खाए थे, खूब खा लिए मजे। तो उस समय उस शिक्षक के सामने बच्चे बोल रहे हैं तो शिक्षक पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा, चलो कितना बढ़िया से बोला गया, मजा आ गया। आप भी निकलते हुए तो लगता है कि आज हमने संतुष्टि किया, बहुत सुंदर पढ़ाया, मजा, ठीक है। तो उस प्रकार से जब लर्नर सेंटर हम जब लर्निंग करेंगे, मतलब हमारा टीचिंग लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है, परस्पर एक साथ। अब मानिए कि हम बोल रहे हैं, आज कोई अगर किसी को नींद आ जाए
नहीं सुनता। तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है ना, आपस में परस्पर लेन देन, बच्चे भी प्रश्न करें, टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग में इसमें देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब एनईपी पर उनका जो व्याख्यान हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में, उन्होंने कहा था कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, उस भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बस्ता के बोझ से बाहर निकालना। तो बस्ता के बोझ से बाहर निकालना, तो बच्चों को खेल खेल में, प्ले प्ले में बच्चों को शिक्षित करना। अब बच्चे बोझिल होकर नहीं पढ़ाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव रहित, फनफुल, जॉयफुल कैसे होगा? जब मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क्स। जब शिक्षक शिक्षार्थी के प्रति समर्पित होंगे, अपना लेसन प्लानिंग बनाएंगे कि हमको पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, किस लेवल को पढ़ाना है, कहां तक पढ़ाना है और किस प्रकार से उसको मोटिवेट करना, ये सब बातें जो है बहुत मायने रखती हैं। सेकेंडरी में भी सब लेवल में, क्योंकि बच्चे का लेवल में हम जाएंगे ना, अच्छा, तो उस लेवल में ऐसा नहीं कि बोले कि बच्चों को जॉयफुल तो सब क्लास में होगा। अब मैं लेक्चर देके चले आए, नहीं चलेगा। अपने आप में जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो टेक्निक है, टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले तो राजनीति कहता है कि दो टीचर्स who will not change themselves will not survive in the coming days। तो आने वाले समय में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि चेंजेस इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है। जब सब कुछ में परिवर्तन हो रहा है, तो हम सब अभी आज समय परिवर्तन आया, तो कुछ लोग कल तक कुछ कपड़े कम करके आते थे, आज कपड़े बढ़े जाते हैं। मतलब जैसे समय आता है, उस समय के अनुसार हम लोग काम करते हैं। अभी तो समय पर कुछ एक शायरी याद आता है कि वक्त दिखाई नहीं देता, वक्त दिखाई नहीं देता, परंतु सब कुछ दिखा देता है। वक्त का आने जाने का कोई वक्त नहीं, परंतु सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है। इसलिए समय, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर। क्योंकि आज तक तो ऐसा नहीं है कि समय से नहीं सीखा। बड़े लोग समय के बाद समझ जाते हैं, इसलिए समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि जो एनईपी का पहला बिंदु क्या था, आई में सानी जी बताएंगे पहला बिंदु क्या था। बहुत बढ़िया, इनको सानी जी के लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए बंधु जी बताएंगे दूसरा क्या था। दूसरा क्या था, इस पर हम योजना में चर्चा किए, इंटरनेशनलाइजेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीयकरण। अब तीसरा पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एनईपी का तीसरा आई क्या है। वो तीसरा ये है कि इम्पैक्टफुल, कोई भी चीज हम काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, और इम्पैक्ट बड़े प्रभावी है। जैसे मान लिया कि थोड़ा देर के लिए
और संघर्ष करते करते आखिर उसने विजय प्राप्त कर लिया। जिस फल के लिए उसने संघर्ष किया था उस फल को उसने प्राप्त कर लिया। चलिए जितेंद्र जी के लिए एक बार मतलब ध्वनि प्रकार है शुरू। देखिए अभी एक छोटा सा 2-3 मिनट का था, हम लोगों ने देखा तो इसी प्रकार से कुछ भी हम क्लास में बच्चों को अगर कुछ पढ़ाते हैं या कुछ संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बोलते हैं या जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ रिलेटेड चीजें दिखाते हैं तो बच्चे के मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसका जो इफेक्ट होगा, मानसिकता प्रभावित होगी, तो बच्चे क्या करते हैं वो अपने आप को रिलेट करते हैं। रिलेट का मतलब जोड़ते हैं, उस संदर्भ में अपने आप को जोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो लर्निंग होता है वह अस्थायी होता है। तो इस पर एक छोटा सा कविता आपको सुनाते हैं कि जिससे कोई न जी चुराए, ऐसे करे पढ़ाई कि कोई न जी चुराए, नई नई बातों हो, नई नई बातें हो, उसमें भी वो भाए। कोई भी चीज का ना काम करते हैं तो उसमें नई बात होती है, मजा आता नहीं, नीरस तो मन लगेगा नहीं लगेगा। बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी टीक न पाए। अगर बोझ लगेगा तो मन लगेगा नहीं लगेगा। कितना कुछ भी याद करे, कितना कुछ भी याद करे, हम पुर से गायब हो गए। जब मन लगता है बच्चे बहुत रट लेते हैं तो यही का है कि रकम से बाहर निकालना जो रूट सिस्टम है, बच्चे रट लेते हैं वो अब रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। अब रटने के जगह पर अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल दिया। दे कोई ज्ञान हमें भी, दे कोई ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाए। दे कोई ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाए। जिज्ञासा हो शान सभी का, जिज्ञासा हो शान सभी का, गीता का भ्रम मिटती जाए। ये एनपी का उद्देश्य है। तो पहले का मतलब है कि कोई भी काम करिए, हम लोग भी कुछ काम करते हैं, कई बार वाले घर वाले कुछ लोग तो आप गार्जियनशिप में भी हैं जो खुद से गार्जियन हैं तो अपना असेसमेंट नहीं कर पाते, लेकिन दूसरा अगर आपको कोई काम देते हैं ना तो उसके असेसमेंट करते हैं कि आप अपना तक सफल हुए। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा आई था क्या, इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल प्रभावी, कितना प्रभावी है। तो हमारा एनपी जब प्रभावी होगा, इम्पैक्टफुल होगा, तब जाकर हम ग्लोबल लेवल पर अपने आप को सुपर पावर ग्रुप में स्थापित कर पाएंगे। फिर चौथा है इंटरैक्टिव। चौथा इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव के अंतर्गत जैसे होता है कि कोई भी चीज बहुत आकर्षक होता है तो उसमें आकर्षक होता है तो कैसे आकर्षक होगा, अट्रैक्टिव कैसे होगा, इंटरैक्टिव कैसे होगा। तो इंटरैक्टिव के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित जो हमारी जो व्यवस्था है उस पर जोर देना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। बच्चे जब अनुभव करेंगे, देखते हैं कभी कभी होता है कि एजुकेशनल ट्रिप पर बच्चों को ले जाते हैं, तो एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाते हैं तो उसका लाभ क्या है, बच्चे खुद से अनुभव करते हैं। हम इतना थ्योरी दे दें तो थ्योरी उतना दिमाग में रहता नहीं, लेकिन जब अभी हाल में प्राइमरी के बच्चे पोस्ट ऑफिस आ गए, नहीं यहाँ पर लोकल में 6 क्लास वाले गए, फिर प्राइमरी के शायद कुछ और जगह पर भी खाने के लिए ले गए थे। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जब ज्यादा वहां पर जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि कैसे काम होता है, अनुभव आधारित उनको अनुभव होता है। उसमें जो लोग जहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस लेके गए आप 6 क्लास को, तो पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर होंगे वो घुमा कर बताए होंगे कि यहाँ पर एसपी
होता है, यहाँ पर मतलब चिट्ठी नहीं आती, यहाँ से पैसे निकलते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट का काम होता है। तो बच्चे को मन में आया कि ये काम सिस्टम अच्छा है, हो सकता है कि उसमें कुछ मन में आया कि हम भी इस जगह पर अच्छे से पढ़ाई करके हम भी बनना चाहेंगे। तो उनको इंप्रेशन होता है, वो इंस्पायर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा जो चौथा आय है इंटरैक्टिव, तो जो चौथा आय है इंटरैक्टिव एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर क्या करता है, फोकस करता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको भी थोड़ा देखें। In ancient times in India, children were sent to Gurukul to study. Students used to stay and study in the Gurukul and do duties like cleaning the Gurukul, watering the plant. The Gurukul system of education was the primary education system in ancient India. In the Gurukul system of education, students went to the teacher's house and request them to teach. If Guru accepts the students as a Shishya, then the student stays at the Guru's place itself and Guru mentored them in all their activities. The advantage of this system was that it created a very good bond between the teacher and his students. Students also learned how to run a family and gained insights on how to deal with society. The current education system and the teachings they are provided today are very different from the ones in the ancient Gurukul system. The Gurukul system of education was widely followed in ancient India, and the country was not lesser than the other nations. In fact, India was the one which gave the world zero, and it was Indians who first quoted that Earth was round in shape. There was also a mention in ancient literature about the Viman, which we today know as the aircraft. In fact, the Indian system of medicines was also very highly developed, and they had surgery techniques where they would do surgery. This was the system of education prevalent in India around 5000 BC. During the Vedic age, when values of living a cultured life and discipline were given higher priority, this system was widely practiced. The guru of the guru or the teacher was referred to as the Gurukul, and the student resided until they completed their education. Equality for all students was a major priority for the Gurukul, and both the Shishyas and the Gurus resided at the same place, which created a stronger bonding. The relationship between the students and the teachers was really sacred, and no fees was even charged by the Gurus. Instead of fees, students paid their respect in the form of Guru Dakshina, as the remark for thankfulness to the teacher. The Gurukul system of education emphasized on the all-round development of the students. Unlike today, there was a sacred time when teachers were considered as next to God and were given immense respect. In order to keep the students closer to nature mostly, the classrooms were also located in the forest areas. Practical science was also given due importance. However, then it was not about securing good marks, but about learning the best. The concept of homework was also not present, and this helped the students in focusing more on their learning skills. Also, unlike the modern days, the craziness for ranks did not exist. The Gurukul system taught students about ethics and practical values. Practical teaching were given greater importance as compared to the theoretical concepts which dominate today. The aim was to inculcate, identify, and nurture individual skills and not a rat race towards good scores. The art of living was taught to the students, and in return for these great teachings,
and holistic training that must be offered to the students, the institutional concept is majorly commercialized nowadays. Important skills, including physical training, are either missing or are given very less importance, which hampers the overall development of the students. Overall, the major ideology behind the ancient Gurukul system was to emphasize the importance of the overall development of the student that can help them in leading a balanced life. These important aspects of life must be taught to the students from a very young age itself. This would help them in making uniform and better decisions on their lifestyle, work, routine, and overall matters in life. Thank you so much guys for watching this video. If you liked it, like, comment and subscribe if you haven't already. आपने देखा कि किस प्रकार से जो भारतीय जो शिक्षा दर्शन है उसमें गुरुकुल की जो परंपरा थी, उस गुरुकुल के परंपरा के अनुसार बच्चे आपस में भी सीखे, उसको आधुनिकता से भी रिलेट करके प्रयोगशाला या अन्य चीजों के बारे में भी बताया गया। इसमें बच्चे किस प्रकार से एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अमृता जी थोड़ा बताइए कि यहाँ कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग से। जैसे कि पुरानी शिक्षा में क्या था कि जो गुरु जो हुआ करते थे वे बच्चे को थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखाते थे, जिसका लेसन जो रहता था एथिक्स बेस्ड रहता था, मॉरल बेस्ड रहता था। तो इसको हम आज से एजुकेशन से रिलेट कर सकते हैं ऐसे करके कि हम जो भी शिक्षा जो भी एजुकेशन दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, उसका जो भी एजुकेशन है वो मॉरल बेस्ड हो या वैल्यू बेस्ड हो। चलिए अमृता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए ईयर टू ईयर बच्चे से सीखते हैं, टीचर से तो सीखते ही है। होता है कि क्लास में बच्चे होते हैं ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं तो वह जैसे टीचर्स क्लास में बोलते हैं उनके एक एक शब्द पर वह बच्चा गौर करता है। कभी आप चेहरा देखिएगा बच्चा का, बहुत अच्छा से आपका जब एक एक चीज पर ध्यान देता है, तो कभी होता है कि अगर आप कहीं मिस किए उसका चेहरे का भाव कभी देखिएगा जो बहुत अटेंटिव है, वो तुरंत माइंड कर लेता है कि यहाँ पर है ना बड़ा सा मिस हुआ है। कल लोग ऐसा महसूस किए, आपने महसूस किया है क्या है? बोलते हैं अध्यापन होता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बच्चे अनुभव से भी सीखते हैं। किसके अनुभव से? तो टीचर्स का अनुभव भी होता है। फिर उसके बाद अपने जो उसका जो कोलैबोरेशन हो रहा है उससे भी सीखते हैं। इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अभी एनईपी को कैसे रिलेट करना है, तो उसमें बच्चे जब कोडिंग सीख रहे हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उनका एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। जैसे अभी हम लोग अपने आप को कंपेयर करें कि जब कोरोना पैंडेमिक आया तो उस समय हम लोगों ने व्हाट्सएप पर बहुत कुछ भेजना सीखा, ग्रुप बनाना बहुत लोगों ने सीखा। उस समय का जो हमारा जो लर्निंग का लेवल था मोबाइल का और आज का जो लर्निंग का लेवल है मोबाइल में, बहुत अंतर आया है कि नहीं? अब हम लोग बहुत अच्छे से उसको चला पाते हैं। उस समय थोड़ा हमारा देख लीजिए ना, थोड़ा हमको मदद कर दीजिए ना, तो अब सब कुछ करने लग रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा कि नहीं? उस प्रकार से एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से हम सीखे तो हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो ज्यादा सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़े रहते हैं। अगर हम अपने आप को जोड़े पर नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? उस ऐप की तरह हम शुरू हो जाएंगे, और जब शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? आउटडेटेड हो जाएंगे। क्योंकि कहा भी क्या है, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग।
gives life never stops teaching. इसको एक बार फिर से सुनेंगे, never stop learning because life never stops teaching. जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता है। कि माँ के गर्भ से शुरू होता है, क्यों? क्योंकि हम भारतीय दर्शन पर आधारित ज्ञान को रखते हैं। हम यह कल्पना करते हैं कि बच्चे माँ के पेट से सीख लेते हैं। कभी ना अभिमन्यु जो है ना माँ के गर्भ में ही सीख लिया है चक्रव्यूह को तोड़ना, निकलना नहीं, क्योंकि अगर माँ नहीं सुनी रहती तो शायद निकलना भी जान लेता। तो कहने का मतलब है कि बच्चे माँ के पेट में भी सीख लेते हैं। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि जब बच्चे माँ के गर्भ में हो तो अच्छी बातें करना, जिससे बच्चा का जो मानसिकता है वो बहुत अच्छा हो। लेकिन आजकल क्या होगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान वही होने लगता है, तो बच्चे पढ़ाई से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्थिति में चले जाते हैं। जब बच्चे पढ़ाई समस्याग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सारे टेंशन लेके जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसमें चौथा हम लोग का बिंदु इंटरैक्टिव था, इसके अंतर्गत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पांचवा जो आई है, तुम बोले कि 5 आई का टीका हुआ, तो पांचवा जो है इंक्लूसिव मतलब समावेशी। तो जो समावेशी है, तो समावेशी का मतलब नो चाइल्ड कैन बी सेपरेटेड, किसी बच्चा में अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, दिव्यांग होते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल। तो फिजिकल तो स्पष्ट दिख जाता है, लेकिन जो मेंटल होता है देहात से तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन स्लो लर्नर है वो इंक्लूसिव के अंतर्गत आएगा। बहुत होता है ना, क्लास में सब हंस लेंगे तो कुछ देर के हंसने के चुप होने के बाद हंसना शुरू करता है, बाद में समझता है। तो कहने का मतलब है जो स्लो लर्नर है उसको भी साथ में लेकर चलना है। हम सब बीएड किए हैं, तो उस बीएड के ये बताया गया कि कभी भी जो विशिष्ट बालक है, जिसको कहता है विशिष्ट बालक, उसको अन्य बालक से अंतर नहीं करना। उसका नहीं तुमको नहीं आता पीछे जाओ, उसको सामान्य बच्चे के साथ रखना, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर भेदभाव करते हैं तो वो टीचर्स के जो है ना कैपेबिलिटी पर, उसके इफिशियंसी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए अब एनईपी कहता है कि जो हमारा जो विशिष्ट बालक है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो चलने में सक्षम नहीं है, व्हील चेयर पर आता है। इसीलिए सीबीएसई की जांच में जितने सारे स्कूल्स हैं उसमें रैंप की व्यवस्था है, ताकि बच्चे क्लासरूम में सीधे चले जाएं दूसरे की मदद से, व्हील चेयर के माध्यम से। इंस्पेक्शन होता है, उस इंस्पेक्शन में ये भी आता है कि दिव्यांग के लिए आपके यहाँ टॉयलेट है कि नहीं, उसका टॉयलेट उसके ढंग का बनना चाहिए। तो अब सब चीज पर फोकस हो रहा है ताकि बच्चे पिछड़े नहीं। पिछड़े मतलब हमारा समाज पिछड़ेगा, जब समाज पिछड़ेगा तो हमारा देश पिछड़ेगा, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। अगर एक बच्चा भी पिछड़ जाता है तो उसके साथ भेदभाव अन्याय होगा, इसलिए सबको ध्यान में रखना है। अब इसमें कभी कभी होता है ना कि कोई भी चीज हम टीम बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने सीबीपी में ट्रेनिंग भी इसी हॉल में किया था कि जेंडर सेंसिटिविटी, कोई भी ग्रुप बनता है, जैसे आज अभी ग्रुप नहीं बना, तो ग्रुप नहीं बना तो दीदी जी लोग सब अपने साथ बैठेंगे, सब टेबल पर दीदी जी को लोग रहना चाहिए, जेंट्स के साथ लेडीज, नहीं तो भेदभाव, अभी भेदभाव हो रहा है, महिला अलग पुरुष अलग। ये इंक्लूसिव है, जेंडर के आधार पर, उसके फिजिकल एबिलिटी
के आधार पर